Okay, write down the heading. Just write Einstein theory of photoelectric effect. Einstein theory of photoelectric effect. Einstein theory of photoelectric effect. There are some points that we will write. Einstein theory of photoelectric effect. Write down point number one. Point number one. Point one. Photoelectric emission is the result of photoelectric emission. Photoelectric emission is the result of interaction of two particles. Result of interaction of result of interaction of two particles. Two particles. One a photon of incident radiation. One a photon of incident radiation. Incident radiation. And other an electron of and other and other an electron of photosensitive metal. Electron of photosensitive metal. Photosensitive metal यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? दो पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन. कौन कौन सा? एक तो जो लाइट फॉल कर रही है उसका फोटोन, और दूसरा मेटल जो है उसके इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं. इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. ठीक है. तो इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं. ठीक है. ये पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स the free electrons are bound within the metal. Are bound within the metal. The free electrons are bound within the metal. Full stop. The minimum energy required. The minimum energy required. The minimum energy required to liberate an electron. Minimum energy required to liberate. Minimum energy required to liberate an electron from the metal surface. From the metal surface is called a work function. Is called work function of the metal. Is called work function of the metal. विद इन ब्रैकेट लिख लेना डब्ल्यू नॉट कॉमा फाई नॉट. कभी कभी इसको डब्ल्यू नॉट से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी हम इसको फाई नॉट से भी डिनोट करते हैं. डब्ल्यू नॉट फाई नॉट. डब्ल्यू नॉट एंड फाई नॉट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट. Each photon interact with one electron. Each photon interact with one. Each photon interacts with one electron. ये बहुत ज़्यादा important है. Each photon interact with one electron.
each photon interact with each photon interact with one electron. मतलब क्या हुआ इसका? तो मतलब वो कि जितने फोटोन फॉल कर रहे थे मेटल पे, एक जो फोटोन है वो रिस्पॉन्सिबल है एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। तो अगर हम नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब क्या बोल रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी फोटो करंट विल इंक्रीज। ये उसको एक्सप्लेन करता है, ये आइंस्टाइन का कंसेप्ट है। ठीक है, ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम नंबर ऑफ फोटोन को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। दैट मीन्स द फोटो करंट विल ऑल्सो इंक्रीज because photocurrent is due to the emission of electron from the metal surface. Okay. इसी में है आगे लिखा था आपने वो थर्ड पॉइंट, ईच फोटोन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, फुल स्टॉप। उसी में आगे है द एनर्जी एच न्यू, एच न्यू ऐसे एच एन न्यू, द एनर्जी एच न्यू ऑफ द इंसिडेंट फोटोन is used up, the energy h nu of the incident photon is used up in two parts, used up in two parts। कौन कौन से पार्ट में देखना आगे। पहला है इसमें ए नंबर, ए, इसके दो पार्ट है। पहला है ए, a part of energy of photon is used, a part of energy of the photon is used in liberating the electrons, in liberating the electron from the metal surface, in liberating the electron from the metal surface। यानी कि जो एनर्जी फॉल कर रही है एच न्यू के फॉर्म में, उसका कुछ पार्ट यूज हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में, यानी इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड को ब्रेक करने में, जो कि हमारा वर्क फंक्शन होता है। उसी में आगे लिखो कॉमा करके, कॉमा विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं ये, सब पढ़ चुके हो तुम लोग, बस उसको लिखना है। which is equal to the work function of the metal। सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट है द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन, बी पार्ट, द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन, द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन is used in imparting kinetic energy। The remaining energy of the photon is used in imparting kinetic energy to the ejected electrons। To the ejected electrons। Okay, very good। Okay, fourth point, very few photons whose energies are greater than, very few photons
whose energy is greater than work function, whose energy is greater than work function, are capable of ejecting the photoelectrons, are capable of ejecting the photoelectrons. Change the line, नीचे लिखो उसके, energy of energy of incident photon energy of incident photon इक्वल टू, बराबर का ऐसा लगाना ना, इक्वल टू मैक्सिमम के ई काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम के ई प्लस मैक्सिमम के ई प्लस वर्क फंक्शन, मैक्सिमम के ई प्लस वर्क फंक्शन, यानी एच न्यू जो इंसिडेंट कर रही है वो किसके बराबर है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू नॉट। ओके, ये फिगर बना लो, सॉरी ये जो इक्वेशन है इक्वेशन लिख लो आप लोग। हाँ आगे लिखो। हाँ ये हो गया हमारे सारे पॉइंट्स आइंस्टाइन के। इसके बाद आगे हम लोग लिखते हैं, राइट डाउन हेडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, पी एल ए एन सी के, प्लैंक्स, एच जो होता है एच उसी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है। हेडिंग लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, determination of Planck's constant and work function। यहाँ पे हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते थे, एच न्यू इज इक्वल टू के ई मैक्स, के ई मैक्स जो होता है वो ई वी नॉट के बराबर भी होता है, फिर प्लस हो जाता है डब्ल्यू नॉट, ये सभी लोग जानते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग जानते थे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसको इधर कर देंगे, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, यहाँ पे ई से डिवाइड कर देंगे तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई, ये हमारी मेन इक्वेशन बन जाएगी। इसको सभी लोग कंपेयर कर लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, या माइनस सी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एम एक्स प्लस सी या एम एक्स माइनस सी। सब लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का ग्राफ होता है ये,
अगर ये प्लस लेते हैं तो ऊपर आता है, अब माइनस लेते हैं तो नीचे आता है। अगर इस तरह का ग्राफ है, ये इस तरह का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये ऐसा ग्राफ बनता है। और मैं ऊपर बनाया तो यहाँ पे ये ग्राफ बना देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से ऐसा ग्राफ बनता है, बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो ये जो होता है पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड माइनस सी। नीचे की तरफ है इसलिए माइनस सी, अगर ऊपर की तरफ होता तो ऐसे होता है ना, ये ऊपर की तरफ यहाँ से कट करके लाइट ऐसे जाती है, अगर तो ये प्लस सी हो जाता, यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। और यहाँ पे जो स्लोप होता है, स्लोप थीटा, तो हम बोलते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m, है ना। इसको हम बोल सकते हैं y बाई एक्स, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी कह सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें, किसी भी पॉइंट पे ये हमारा हो जाएगा डेल्टा y, और यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा डेल्टा x। तो डेल्टा y इसको बना लो साइड में, डेल्टा x और डेल्टा y, ये एक्सिस हमारी x एक्सिस और ये एक्सिस है y एक्सिस ना। m क्या होता है, tan थीटा, m इज द tan ऑफ दैट एंगल, दैट इज डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और ये हम कर सकते हैं ना, नोट इट डाउन। देन ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो इससे मैच करता हुआ ये इक्वेशन है। अगर हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल को y एक्सिस पे रखें, है ना, y को अगर ऐसा ग्राफ बनाना हो, ये मेन ग्राफ है हमारा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो समझने के लिए था। ये मेन ग्राफ, ये मेन ग्राफ है हमारा। ये इस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल v आएगा, v नॉट, और यहाँ पे हमारी आएगी फ्रीक्वेंसी, ये वाली x के प्लेस पे फ्रीक्वेंसी है, v नॉट के प्लेस पे y। ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वो क्या आएगा, W अपॉन ई, क्योंकि यही C है, या माइनस सी ले कोई दिक्कत नहीं, बस ये है मैग्नीट्यूड में लिखे तो W अपॉन ई, यानी वर्क फंक्शन अपॉन ई। और यहाँ पे जो थीटा होगा यानी कि tan थीटा, स्लोप, इसका जो स्लोप हो जाएगा, या इसको हम बोलेंगे tan थीटा, या इसको हम सिंपली m भी कह सकते हैं, स्लोप, दैट इज इक्वल टू h अपॉन ई। यहाँ पे हम कहीं पे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हम कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर को ले लें, यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा वी नॉट, ये वी में कितना चेंजमेंट हुआ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा, फ्रिक्वेंसी में डेल्टा न्यू नॉट, तो डेल्टा वी नॉट अपॉन डेल्टा न्यू नॉट रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एच अपॉन ई की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो इसको नोट कर लो आप लोग। इसको चाहे तो हम नीचे में माइनस भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट चूंकि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे तो डब्ल्यू नॉट अपॉन ई लिख दिया हमने। तो अगर आप इस तरह से, अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो आप ग्राफ से बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ग्राफ अगर आपको गिवन हो तो ग्राफ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो जो भी आपको निकालना हो वर्क फंक्शन। जैसे मान लो
ये पोर्शन हमने अगर निकाल लिया, ये दैट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। अगर आपको वर्क फंक्शन निकालना है तो जो भी ये लेंथ दी हुई है इसमें अगर हम ई से मल्टीप्लाई कर दें, ई से मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज डब्ल्यू नॉट अपॉन ई इक्वल टू दिस लेंथ एंड डब्ल्यू नॉट इक्वल टू दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ई। ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा, ये देखो वी नॉट वोल्ट में होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होना चाहिए, है ना। ये देख लेना, इसको लिख लेना एच जेड और इसको लिख लेना वोल्ट, तभी ऐसा होगा, वोल्ट एंड हर्ट्ज में होगा तभी ऐसा होगा। आई थिंक इट इज डन। इजी है, कुछ है नहीं, बस उसको याद रखना है हमको, लीनियर इक्वेशन है। Write down the question. Calculate पहले नंबर पे कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ, दूसरे नंबर पे है वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये 4 है और ये 5 है और ये 6 है। यहाँ पे इसमें लिखेंगे ये है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट, है ना। वन मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, फिर से कर लेते हैं इसको, 1 2, फिर से बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे 2.5 से निकल के आया है, ये 2.5 है, यहाँ पे 4.5 है, हाफ मिडिल पे, यहाँ से 4.5, यहाँ से एक लाइन मिला दी गई है इसको, ये एक लाइन यहाँ पे मिडिल पे है 4.5, ये है 2.5 पे। फ्रीक्वेंसी निकालना है, एंड वर्क फंक्शन निकालना है। वोल्ट जब 0 था तो उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 4.5 इंटू 10 की पावर 14। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्क फंक्शन, हम जानते हैं एच न्यू नॉट होता है, एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, एच की जो वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 to the power -34 मल्टीप्लाइड बाई ये जो आया है, क्या आया है, दैट इज 4.5 इंटू 10 की पावर 14। सॉल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा, दैट इज 1.86 इंटू 1.86, सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 2.97 इंटू 10 की पावर -19 जूल, 2.97 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा।
या अगर इसको चाहो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू नॉट फिर से ले देता हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू नॉट दैट विल इक्वल टू 2.97 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19 जूल के बराबर होता है। उत्तर से डिवाइड कर देंगे तो ये पे कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नोट इट डाउन। डन। कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं बेस्ड ऑन दैट। Write down next question. Question is, what is frequency of photon? What is frequency of photon? That means we have to calculate frequency of photon whose energy that is given uh, 66.3 electron volt. 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। E जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बल्कि हमको किस में होना चाहिए, जूल में होना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 66.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेट करो। जो भी आएगा इसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ई अपॉन एच। यहाँ पे आता है एनर्जी की वैल्यू 66.3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन में एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। इसको करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 10 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 10 आना चाहिए। ठीक है, अप्रोक्स की बात कर रहा है। और ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, ये पावर 1 है -18 कितना हो जाएगा 16 हर्ट्ज। डन। हाँ हाँ हाँ, बस ये लास्ट है।
एक दो दिन में और खत्म हो जाएगा। वैसे इसमें एक चैप्टर, एक टॉपिक हटा दिया गया है, बस एक दिन में खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है कल खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें, तो बता देंगे। फोटो सेल वगैरह वैसे हटा दी गई सिलेबस से, और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ये भी हटा दिया गया सिलेबस में। चाहो तुम फिनिश भी मान सकते हो, चाहो तो फिनिश भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी हटा दिया गया, फोटो सेल भी हटा दिया गया, तो कोई नहीं। हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कल, उसके बाद हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं ना। तो एक क्वेश्चन और लिखो इसमें, तुम लोग खुद करके दिखाओ। वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड है, उसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। राइट डाउन, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 angstrom, falls on a metal surface, falls on a metal surface, falls on a metal surface of work function, of work function 1.9 electron volt, 1.9 electron volt. Find number one, find number one। उसमें पहला है एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ फोटोन यानी एनर्जी ऑफ फोटोन जो फॉल कर रहा है उसका एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो यानी कि मैक्सिमम की ही बात हो रही है, यानी मैक्स कितना हुआ। थर्ड पॉइंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट निकालना है। तो यहाँ पे अगर सोल्यूशन में देखा जाए तो फर्स्ट के लिए सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अगर रखेंगे तो जो आएगा वो जूल में आएगा, और हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आएगा h 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्यों किया हमने माइनस 1.6 10 का माइनस 19, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है। करो इसको कैलकुलेशन करके बताओ कितना आएगा। अप्रॉक्स निकाल लो।
What is the answer? Do fast. सिक्सटीन में तो नहीं आ रहा है इसमें, 16 तो नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ आ रहा है, देख लेना। यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसके हिसाब से आंसर इज 2.48। आंसर जो है इसका इसमें आ रहा है 6.6 इंटू 10 हमारा 44 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 5 इंटू 10 5 2.48 आएगा आंसर। देख लेना 2.48। 2.48 आ रहा है सिर्फ, ओनली द आंसर इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, लिख लो इसको 2.48। सोल्यूशन में तो यही दिया हुआ है, आंसर जो इसका आ रहा है वो यही दिया हुआ है 2.48। हो सकता है यही हो, एक बार फिर से चेक करो इसको। चेक इट अगेन। ठीक है, लिख लो, बाकी लोग जो कैलकुलेट नहीं कर पाए वो लिख लो 2.48। चलो हो गया जो हो गया, कैलकुलेशन देख लेना एक बार फिर से 2.48। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोग इसका नहीं है वो लिख लें 2.48 लिख लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कैलकुलेशन चेक कर लेना फिर से। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी वी हैव टू फाइंड। सेकेंड पॉइंट दैट इज वी हैव टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी। जो इंसिडेंट है एनर्जी इक्वल्स टू के ई या के ई मैक्स प्लस वर्क फंक्शन या वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। वर्क फंक्शन गिवन है यहाँ पे, हमको के ई मैक्स निकालना है। के ई मैक्स अगर कैलकुलेट करना हो तो ई माइनस वर्क फंक्शन। ई कितना है 2.48 माइनस 1.9। 2.48 माइनस 1.9, वर्क फंक्शन इज 1.9। बताओ कितना आएगा।
व्हाट इज द आंसर? 0.58, वेरी गुड। क्या आएगा? 0.58 इलेक्ट्रॉन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड की बात आ रही है, कैसे होगा? जो काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स होता है वो किसके बराबर होता है? ई वी नॉट के बराबर होता है। तो वी नॉट बराबर हो जाएगा के ई मैक्स अपॉन ई, यानी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। 1.6 इंटू 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे देखो के ई मैक्स कितना है? 0.58 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, है ना? तो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा 10 की पावर दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0.58 वोल्ट आ जाएगा। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसलिए उसको वोल्ट सॉरी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ई का चार्ज दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो वही बच जाएगा आंसर, 0.58 वोल्ट हो जाएगा। तो ये आंसर था इसका, 0.58 वोल्ट। आई थिंक इट इज क्लियर।